We start exercise 1.2. Question number 1. Which of the following are example of the null set? And we know that null set means set has no element, right? Question number 1 is given. Set of odd natural numbers divisible by 2. Now we know that set of odd natural number means 1, 3, 5, 7, 9. And we know that 1, 3, 5, 7, 9 it is not a divisible by 2. That means this set has no element. So it is an example of the null set. चलो क्वेश्चन नंबर 2. Set of even prime numbers. Now set of even prime number only 2. 2 is a even number which is prime number. So set of even prime number it is only one element, it is 2. That means this set it is not null set. So this given set it has only one element. So this set it is not an example of the null set. 3 number. X is a natural number. X is less than 5 and x is greater than 7. We know that there is no natural number which is less than 5 and greater than 7. So there will be no element in the given set. So it is not an example of a null set. 4 number. Y is a point common to any two parallel lines. Now we know that 1 and 2, these two lines are parallel, and we know that two parallel lines cannot be intersect. So there is no common point between two parallel lines. So given statement, there is a given set, it has no element. So it is not an example of a null set. Question number 2. Which of the following set are finite or infinite? Finite और infinite check करना है आपको, ठीक है? The set of month of year, we know that in year total 12 months, January, February to December. So there are 12 members in the given set. So it is a finite set. Now second, 1, 2, 3 up to dash dash dash, it is set of natural number, and we know that set of natural number it is a infinite set. Question number 3. 1, 2, 3, 99 up to 100. This set has 100 elements. So given set is a finite. The set of positive integers greater than 100. ग्रेटर देन 100 यानी बहुत सारे हो सकते हैं. स्टार्टिंग में 101, 102, 103, 104 up to dash dash dash. How many? It is infinite. That is the given set is a infinite set. The set of prime number less than 99. So we know that 2, 3, 5, 7 up to 97. Last number is. So it is countable. So it is a finite set. Number 3. State whether each of the following set it is a infinite or finite. The set of lines which are parallel to the x-axis. चलो ये आपका हो गया, देखो ठीक है, origin x-axis y-axis. Set of lines which are parallel to x-axis. देखो ये हो गया parallel to x-axis, ये भी parallel to x-axis, ये भी parallel to x-axis, यहाँ पे भी आ सकते हैं parallel to x-axis, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है. यानी here infinite lines can be drawn parallel to the x-axis. So given set it is a infinite. Second, the set of letters in the English alphabet. We know that A to Z, total 26 alphabets. It is a finite set. Third number, the set of numbers which are multiple of 5. अब मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 5, 10, 15, 20, 25 and so on. It is infinite. So given set it is a infinite obviously. चलो इसके बाद क्या लिखा है? The set of animals living on the earth. ये तो आप काउंट कर सकते हो. So it is a finite set. The set of circle passing through the origin. अब देखो ये आपका हो गया, origin हो गया. सर्कल कहाँ से पास करना है? ओरिजिन में से पास करना है. तो एक सर्कल ऐसे हो सकता है, एक सर्कल ऐसे भी हो सकता है, एक सर्कल ऐसे भी हो सकता है, एक सर्कल ऐसे भी हो सकता है. बहुत सारे सर्कल बना सकते हो आप, जैसे सर्कल बनाना चाहो वैसे बन सकता है. इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है. So it is infinite number of the circle can be drawn passing through the origin. So given set it is a infinite.
क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर द ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी चेक करना है कि टू सेट्स आर इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट. व्हेन टू सेट्स आर इक्वल, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में आना चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में आना चाहिए. इन शॉर्ट ए और बी में सेम एलिमेंट होना चाहिए. ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट हियर. सो अगर दोनों में एलिमेंट सेम है तो दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो ए गिवन है, इधर भी ए गिवन है, बी गिवन है, इधर भी बी गिवन है, इधर भी सी गिवन है, ये भी सी गिवन है, डी गिवन है, डी गिवन है, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज बोथ आर इक्वल. चलो अब यहाँ पे देखो 4 8 12 16, यार 8 4 16 18, 4 तो यहाँ पे भी 4 है, 8 यहाँ पे भी 8 है, 12 इधर नहीं है. तो 12 belongs to A but 12 does not belongs to B, so A not equal to B, right? That is two sets are not equal. चलो इसके बाद देखते हैं. A equal to given है 2 4 6 8 10, B क्या given है, X is a positive even integer and X less than equal to 10. तो क्या मिलेगा, इवन नंबर लेना है, वो भी पॉजिटिव, वो भी इंटीजर लेना है. कौन कौन से नंबर आएंगे, ये नंबर आएंगे 2 4 6 8 10, ठीक है. अब ये देखो 2 and 2 सेम हो गया, 4 4 6 6 8 8 10 10, यानी सेट A and सेट B have a same elements, so both are equal, that is A subset B and B subset A, therefore A equal to B. चलो 4 नंबर में क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 यानी 10 20 30 40 50 60 अप टू डेस्ट स्टेस, और b इक्वल टू गिवन 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, राइट. अब यहाँ पे देखो 10 10 तो है, 20 यहाँ पे भी है, 20 30 इधर भी 30 है, बट 15 यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 नहीं है. दैट मीन्स 15 बिलोंग्स टू B but 15 does not belongs to A, so A and B are not equal, right? चलो क्वेश्चन नंबर 5, two pair given and prove that it is equal or not equal. चलो A is a 2 3 given, but B is given X is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0. ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं आप. आपको क्या लाना है, प्रोडक्ट 6 लाना है, एडिशन कितना लाना है 5. वी नो दैट 3 2 जा 6 एंड 3 प्लस 2 कितना होगा 5. सो वी हैव टू फैक्टर x प्लस 3 x प्लस 2. सो x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 2. सो b क्या है आपका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या मिला -3 और -2, तो b इक्वल टू क्या मिला आपको -3 और -2 मिल गया. a कितना है 2 3 और b कितना है -3 -2, ये तो दिख रहा है बोथ आर नॉट इक्वल. क्यों, a is not a subset of b and b is not a subset of a, therefore a not equal to b. चलो a क्या लिखा आपका, x is a letter in the word follow. चलो फॉलो में लेंगे तो क्या आएगा, एक अल्फ़ाबेट एक ही बार आएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ओ, 2 बार l है तो 1 बार l होगा, फिर w, ठीक है, o भी रिपीट हो रहा है, l भी रिपीट हो रहा है, तो क्या मिलेगा एफ ओ एल डब्ल्यू, 4 एलिमेंट आ गए. चलो बी, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF, बोथ आर डिफरेंट, तो WOLF हो गया. चलो देखो WOLL F यानी A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी बोथ आर इक्वल सेट. चलो क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट ऑफ द गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट. आपके पास A B C D E F G और H है, आपको इक्वल सेट निकालना है, ठीक है. चलो A कितना है 2 4 8 12, कहीं पे भी दिख रहा है 2 4 8 12, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक में भी नहीं है, यानी एक ही नहीं मिलेगा आपको. चलो A के साथ तो कोई है नहीं इक्वल, यानी A के साथ तो कोई मिलेगा नहीं. चलो B चेक करते हैं, 1 2 3 4, इसमें नहीं है, इसमें देखो 1 2 3 4 है, यानी B और D क्या हो गया, सेम हो गया, तो B इक्वल टू D हो गया. चलो अभी C के साथ कोई है, 4 8 12 14, 4 8 12, लेकिन 14 नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, किसी के साथ इक्वल नहीं बन रहा है आपके पास, ठीक है. अब दूसरा देख रहा है तो ये मिल रहा है आपको, देखो E और G इक्वल है, -1 1 1 -1, तो E इक्वल टू G, यानी दो आपको सेम मिले, एक B एंड D मिला और दूसरा E एंड G मिल गया. नाउ
definition, union of sets. Suppose for example, suppose A equal to 1 2 3 and B equal to 2 3 4. Union of set, it is denoted by A union B. A union B का मतलब क्या हुआ? पहले तो आपको A के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लिख दिए मैंने A के सारे एलिमेंट, ठीक है, A के सारे एलिमेंट लिख दिए 1 2 3. अब B के सारा लिखो, बट B के सारे लिखने में एक टर्म याद रखना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ये 2 and 3 ऑलरेडी गिवन है, तो अब क्या आएगा आंसर 4 आ जाएगा. यानी A यूनियन B क्या मिला हमें 1 2 3 4. दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग. चलो, सपोज A इक्वल टू 1 5, B इक्वल टू 4 6. तो A यूनियन B यानी एलिमेंट लाइज इन A लाइज इन B एंड बोथ. चलो, A में क्या है 1 and 5, B में क्या है 4 and 6. तो आंसर क्या हो गया 1 5 4 6. अब देखो इसके वेन डायग्राम. ये हो गया U यानी यूनिवर्सल सेट बन गया आपका पूरा. ये हो गया आपका सेट A, ये हो गया सेट B. तो ये जितना भी पोर्शन बन रहा है ब्लैक पेन से जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इट इज अ A यूनियन B. An element lies in A or in B and in both. It is A union B. Now we take properties. First, it is commutative properties. Commutative में क्या होगा, A union B और B union A always same मिलेगा. Second, associative law. A union B union C equal to, you can write A union bracket B union C. And third, law of identity element. We know that A union phi is A because phi has no element. तो क्या मिलेगा आपको आंसर A मिलेगा. यानी A यूनियन phi इक्वल टू क्या हो जाएगा A हो जाएगा आपके पास. नाउ उसके बाद A यूनियन A कोई भी सेट है, वो सेट का उसी सेट के साथ आप यूनियन लेते हो तो क्या मिलेगा सेट इट सेल्फ मिलेगा. यानी ये हो गया आइडेम्पोटेड लॉ मिल जाएगा आपके पास. सेम टू सेम यूनियन U A is equal to universal set U because universal set is a big set. So U A is equal to U, but this U it is a universal set. Now definition of intersection of the set. So we have two set A and B. इंटरसेक्शन में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट बिटवीन A एंड B. सपोज A इक्वल टू यू गेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू और B इक्वल टू सपोज वी हैव एक्स डब्ल्यू पी क्यू. तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है आपके पास, देखो x है और W है. आंसर हो गया A इंटरसेक्शन B इक्वल टू एक्स एंड W. अब ये हो गया आपका वेन डायग्राम. ये वेन डायग्राम क्या है आपके पास, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया. दोनों का कॉमन पोर्शन इतना मिलेगा आपको ब्लू प्लेन वाला. तो आंसर क्या हो गया A इंटरसेक्शन B. चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज उसकी. इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है. पहले वो तो कम्यूटेटिव लॉ है, जैसे यूनियन में था ऐसे इसमें है. A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन है, दोनों क्या होगा ऑलवेज इक्वल मिलेगा. सेकंड एसोसिएटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये सेपरेट कर दो तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो जाएगा. थर्ड, फाई इंटरसेक्शन A ऑलवेज फाई. क्यों, A में तो एलिमेंट है, फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा फाई मिलेगा ना ऑब्वियसली. ओके, तो दोनों का यूनियन क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट और सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा A होगा. फॉर एग्जांपल सपोज U इक्वल टू 5 6 7 8 9 एंड 10 है, ठीक है, और A इक्वल टू है आपके पास 5 6 7 बराबर. अब ये दोनों का आपको इंटरसेक्शन निकालना है. U इंटरसेक्शन A, ये आपका यूनिवर्सल हो गया, इंटरसेक्शन है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या मिले आपको 5 6 7 मिला. तो 5 6 7 तो क्या एक्चुअली A है आ गया. तो यूनिवर्सल सेट और सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा सेट मिलेगा. कोई भी सेट हो सकता है, वो A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है बराबर, क्योंकि सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल. A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल. कोई भी सेट होगा वो यूनिवर्सल का सबसेट होगा.
बराबर है। चलो इंटरसेक्शन, वो तो ए मिलेगा। एक नया लॉ आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, पहले ये मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नाउ we define disjoint set. Disjoint set means set A and set B have no relation. No relation means no common point between A and B. For example, suppose A equal to we have 1 2 3, right, and B is equal to 4 5. So we get A intersection B is equal to 5. So A and B are disjoint set. अगर इसको मुझे वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हो आप, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, ये आपका हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। देखो ए के डिफरेंट है 1 2 3, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 2 3। बी में क्या है 4 एंड 5, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, बराबर। तो ये आपका हो गया डिसजॉइंट सेट। यूनिवर्सल तो इधर है, ए सेट है, ये सेट बी है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा नल सेट। सो सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट डज नॉट सबसेट। चलो वापस याद करो डेफिनेशन। सबसेट का मतलब क्या होता है, ए और बी टू सेट है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी, then A is a subset of B, otherwise it is does not subset। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 5 है। अब ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। देखो 2 3 4 है इधर, बराबर है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आपके पास 2 3 4 है, और बी इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट ए लाइज इन सेट बी है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि दोनों के बीच में क्या आएगा सबसेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए बी सी एंड सेट बी सी डी, ए इक्वल टू ए बी सी और बी इक्वल टू क्या है बी सी डी। अब देखो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ बी सी डी है, ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बट स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो क्या हो गया सबसेट होगा ही नहीं, तो ए डज नॉट सबसेट बी। चलो 3 नंबर में क्या लिखा है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखो 11th है, क्लास 11 में लिमिटेड बच्चे होंगे, 50 या 60 बच्चे हो सकते हैं, और स्कूल में सारे बच्चे आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, यानी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी हो गया, यानी दोनों के बीच में क्या आएगा सबसेट आ जाएगा। चलो 5 नंबर पकड़ो, क्या लिखा है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ये जो रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल है, तो ये सबसेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट जो प्लेन के एलिमेंट है वो रेक्टेंगल में आने वाला है नहीं, तो इट इज अ डज नॉट सबसेट। चलो 6 नंबर में क्या लिखा है, एक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी काइंड ऑफ ट्राइंगल हो गया, एक टाइप हो गया इसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस भी हो सकता है, बराबर है। तो ये जो मिलेगा आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट इज अ सबसेट ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल ये ट्राइंगल इन द सेम प्लेन में तो बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, तो ये तो आपका यूनिवर्सल बन गया, और ये क्या हो गया सेट हो गया, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू होता है, तो ये हमेशा सबसेट ऑफ ये मिलेगा। चलो 4 नंबर देखो, 4 नंबर में क्या लिखा है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और सेकंड में क्या लिखा है, एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद द रेडियस 1। अब एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन है, तो वो तो रेडियस कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे ओनली 1 यूनिट वाला है। हाँ अगर यहाँ 1 होता और इधर भी 1 होता तो सबसेट हो जाता, बट यहाँ पे क्या लिखा है सर्कल इन द प्लेन, यानी कि वो रेडियस तो सर्कल की कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, यानी इसमें सारे ज्यादा एलिमेंट है, इसमें कम एलिमेंट, इट इज डज नॉट सबसेट। चलो 7 नंबर में क्या लिखा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरे में क्या लिखा है, एक्स
इज एन इंटीजर है। अब इवन नेचुरल नंबर में क्या बनेगा आपके पास 2 4 6 8 10 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है इंटीजर है, यानी सारे आएंगे 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, यानी 2 4 6 इसमें आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये इसका सबसेट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वाई, ठीक है। चलो यहाँ पे सेट ए बी है, डज नॉट सबसेट बी सी है। अब ये तो ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है और ए बी इसमें है, तो ये तो सबसेट होता है ना। इट इज़ क्लियर दैट सेट ए बी इज अ सबसेट ऑफ सेट बी सी ए, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो सेकंड में क्या लिखा है, सेट ए, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो तो आपको पता ही है कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे इधर, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे 2 एलिमेंट है ए ई, तो ये 2 एलिमेंट तो यहाँ आ जाएंगे सारे के सारे, तो इज अ सबसेट, इट इज अ ट्रू, तो गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, नो, वाई, बिकॉज ये ए, ये हो गया आपका बी। 2 belongs to A but 2 does not belongs to B, therefore A is a does not subset of B, so given statement is false। चलो set A is a subset of A B C, it is true, obviously 1 element है, ये तो इसमें है, given statement is true। अब देखो set A belongs to A B C, no yet, because set A subset होता है ना, A belongs to होगा तो सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी मिलेगा आपको, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो इसमें क्या लिखा है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 and 4, ये आपका बी हो गया, ए हो गया ए। चलो बी में क्या लिखा है, एक्स इज नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 36। अब डिविजिबल बाय 36 यानी नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड बाय 36 है। कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं आपको, 1 2 3 4 6 12 18 36 मिलेंगे। अब ये देखो 2 and 4 है, 2 and 4 यहाँ पे आ गए, ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया, यहाँ तो सबसेट ही गिवन था, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ ए इक्वल टू 1 2 एंड सेट ऑफ 3 4 and 5। अब याद रखना 1 सिंगल एलिमेंट, 2 सिंगल एलिमेंट, 3 4 1 एलिमेंट है, वो सेपरेट एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है, 3 4 सेट और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। चलो पहले क्या लिखा है, सेट ऑफ 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब ये तो एलिमेंट है सारे, तो 1 बिलोंग्स टू ए होगा, 2 बिलोंग्स टू ए होगा, सेट ऑफ 3 4 बिलोंग्स टू ए होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसेट, इट इज़ नॉट ट्रू, सो गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो अब यहाँ पे देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो करेक्ट ही है। सेट ऑफ 3 4 subset of A, yes it is true, why, because set of 3 4 is element of A, it is belongs to A। अब ये तो आपका एलिमेंट हो गया, उसको हम लोग सेट में कन्वर्ट करते हैं, तो सेट तो क्या होता है, दूसरे सेट के साथ सबसेट या डज नॉट सबसेट होता है, ये तो सबसेट ही मिलेगा आपको, सो गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट हो गया। नाउ 1 बिलोंग्स टू ए, 1 तो इसमें है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। 1 सबसेट ऑफ ए, ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट तो क्या होता है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू होता है, सो गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ 1 2 and 5 सबसेट ऑफ ए, ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 2 and 5 तीनों एलिमेंट है, तो हो गया 1 2 and 5 सबसेट ऑफ ए, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो सेट है, सेट में क्या होता है, सबसेट या डज नॉट सबसेट, बिलोंग्स टू तो डज नॉट बिलोंग्स टू तो होता ही नहीं है, तो 1 2 5 इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, so given statement is incorrect। चलो अब क्या लिखा है, 1 2 3 सेट सबसेट ऑफ ए। नाउ यार ए इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1 2 सेट ऑफ 3 4 and 5 है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 3 अगर डज नॉट सब बिलोंग्स टू ए, तो ये सेट तो इसमें आएगा ही नहीं, तो डज नॉट सबसेट होगा, तो गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हो गया। चलो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 तो सेट है, and we know that 5 is a subset of every set, तो 5 belongs to A, 5 subset of A होगा, यानी 5 belongs to A, it is not possible, so given statement is incorrect। 5 subset A, we know that null set is a subset of every set, तो 5 is a subset of A, it is true।
set of 5 subset of 8, incorrect statement because 5 is a subset of A. चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फिर एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो कि सपोज सेट A इक्वल टू ए बी है, आपको क्या लिखना है, सबसेट ऑफ ए, पहले क्या होगा, नल सेट। एक बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन लिखो तो पहले तो नल सेट लिखना है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और लास्ट में कोई भी सेट है वो इट सेल्फ होगा, यानी ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी पहले तो नल सेट, फिर जो सेट लिखा है वो लिख दो आप। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो पहले तो नल सेट आएगा, फिर सिंगल सेट आएगा, फिर डबल सेट आएगा। सपोज यहाँ 3 एलिमेंट हो तो ए बी सी हो तो पहले नल सेट, फिर सिंगल, फिर डबल एंड फिर ट्रिपल, ठीक है। पहले नल सेट लिख दिया हमने। अब सिंगल वाला कौन सा आएगा, ए सेट होगा, और दूसरा क्या आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मिला, पहले नल सेट, फिर सेट ए, सेट बी, और दोनों कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल टू सेट ऑफ ए, ठीक है। सबसेट ऑफ ए लिखना है हमको, पहले क्या लिखेंगे, नल सेट, फिर दूसरा सेट, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है, ए बी, 2 एलिमेंट है, पहले क्या आएगा, नल सेट, फिर सिंगल एलिमेंट ए, सिंगल एलिमेंट बी, और थर्ड में क्या आएगा, ए बी आएगा। यह 3 एलिमेंट है, पहले क्या आएगा, नल सेट, फिर सिंगल सेट 1, सिंगल सेट 2, सिंगल सेट 3, फिर डबल पेयर बनाओ, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड, जो पहले 1 एंड 2 बना, फिर 1 एंड 3, उसके बाद 2 एंड 3, उसके बाद 1 2 3, पहले क्या बनेगा, नल सेट, सिंगल 1, सिंगल 2, सिंगल 3, फिर 1 2 का पेयर बनाओ, फिर 1 3 का पेयर बनाओ, फिर 2 3 का पेयर बनाओ, फिर 3 का पेयर बना दो, आगे है 8 एलिमेंट। चलो ए इक्वल टू 5, तो 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वही मिलेगा, सबसेट ऑफ ए क्या बनेगा, 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये एमसीक्यू में मोस्टली आता है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। पी ऑफ ए आपको याद होना चाहिए, पी ऑफ ए यानी पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या है, कोई भी सेट है उसके सबसेट निकालो और उसी का एक सेट बना दो। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो ए इक्वल टू सपोज 1 2 है, ठीक है। तो पहले क्या मिलेगा हमें, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ में क्या होगा, पहले तो 5 मिलेगा, फिर सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट 2 एंड डबल एलिमेंट 1 2, 4 एलिमेंट मिल गए। पावर सेट पी ऑफ ए, पावर सेट यानी कर्ली ब्रैकेट लिखो पहले तो, अब ये सबको एलिमेंट में डाल दो, तो 5 1 2 एंड 1 2। अब याद रखना, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वली मिलते हैं। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एलिमेंट है, यानी कि इसका फाइंड करने का और इसका फाइंड करने का फॉर्मूला सेम ही है, 2 नंबर ऑफ ए, ठीक है ना। क्योंकि देखो नंबर ऑफ ए में कितने हैं, 2 एलिमेंट है, 2 कितना हो गया, 4 एलिमेंट आ गया, 4 एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। अगर ए इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ 5। अब नंबर ऑफ 5 में तो एलिमेंट है नहीं, तो नंबर ऑफ ए में क्या मिला, 0। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसके एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ पावर सेट ए इक्वल टू 2 नंबर ऑफ ए, बट नंबर ऑफ ए क्या है, 0, तो 2 आंसर कितना मिलेगा, 1। तो नंबर ऑफ पावर सेट ए इक्वल टू 1 एलिमेंट। अब देखते हैं एक्स्ट्रा एमसीक्यू, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है कि ब्रैकेट पी ऑफ 5 यानी पावर सेट ऑफ 5 इक्वल टू डैश 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 एंड नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इक्वल टू डैश डैश डैश। चलो पावर सेट ऑफ 5, वो तो एक ही एलिमेंट मिलेगा, 5 मिलेगा, ओके। पावर सेट 5, तो पहले तो क्या होगा, नल सेट, फिर ये वाला सेट आ जाएगा। अब उसका भी पावर सेट लेता हूँ मैं, तो कितने एलिमेंट मिलेंगे, 4 एलिमेंट मिलेंगे। पहला कौन सा आएगा, 5 तो लिखो आप, फिर ये वाला 5 लिखो, फिर ये वाला 5 लिखो, फिर ये दोनों का कंबाइन वाला लिख दो। कितने एलिमेंट मिले, 1 2 3 एंड 4। फिर से एक बार देखो, पहले हमने क्या लिखा, पी ऑफ 5 में क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा, 5 इटसेल्फ, वो कभी नल सेट नहीं होता है, ठीक है। पावर सेट कभी नल सेट नहीं होता है। तो पी ऑफ 5,
पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फाइव, ये जो दिया हुआ है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो आप, ये लिख दिया हमने। चलो अब दूसरा पी ऑफ फाइव लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, फाइव लिखोगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, पी ए पूरा सेट ले लो आप, ये आपका हो गया पी ऑफ फाइव, चार एलिमेंट मिल गए, 1 2 3 एंड 4। अब नंबर फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ पी फाइव, कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट मिल गया हमें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये भी एक्स्ट्रा इस टाइप का भी आता है कई बार कि a इक्वल टू 1 3 एंड 5, कोई भी एलिमेंट दे सकते हो, मैंने 1 3 5 लिया। नंबर ऑफ पी ऑफ ए इक्वल टू डैश डैश डैश। चलो ए कितना है 1 3 5, हाउ मेनी एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 हो गया। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, पी ऑफ ए, तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए 2 नंबर ऑफ ए होगा, नंबर ऑफ ए कितना है 3, तो 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ पावर सेट ए, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा 2 नंबर ऑफ पावर सेट है, पर नंबर ऑफ पावर सेट कितना है 8 है, तो 2 होगा। अब 2 कितना होता है 256, पहले 3 एलिमेंट है बराबर, जितने पी हो उतना याद रखना, पहले ए कितना है 1 3 5 है, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 3, तो पहले पी ऑफ ए के लिए 2 8 एलिमेंट, दूसरे के लिए 2 अगर एक और पी होता तो 2 256 हो जाता, ठीक है। चलो एक बार वापस देख लेते हैं, व्हाट इज इंटरवल्स, कि 2 रियल नंबर ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, इंटरवल में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से हमेशा स्मॉल होगा, यानी ए लेस देन बी। 4 इंटरवल है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज क्लोज ओपन। ओपन में क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट मिलेगा, क्लोज में क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ओपन क्लोज में ओपन जहाँ पे आएगा वहाँ स्मॉल आएगा, और क्लोज आएगा वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। यहाँ क्लोज ओपन है तो क्लोज में क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन में क्या आएगा स्मॉल आएगा। स्मॉल का मतलब पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडिंग, तो a लेस देन x लेस देन b, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू a होगा और x नॉट इक्वल टू b होगा। क्लोज का मतलब पॉइंट्स आर इंक्लूडिंग, तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b होगा। अब यहाँ पे देखो ओपन है, ये क्लोज है, ओपन में a नहीं आएगा बट b आएगा, तो क्या आएगा a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b हो जाएगा। क्लोज ओपन, कौन क्लोज है, a क्लोज है, तो क्लोज में a आएगा और b नहीं आएगा, तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब यहाँ पे देखो ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन यानी स्मॉल ब्रैकेट, इक्वल टू यानी क्लोज ब्रैकेट। स्मॉल में क्या होगा, ये वाला स्मॉल हो गया, क्लोज में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये ओपन -4 क्लोज 6 आ गया। अब ये देखो ये लेस देन है, ये भी लेस देन, यानी दोनों ओपन हो गया, तो इंटरवल क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल मिलेगा, यानी स्मॉल ब्रैकेट -12 -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ जहाँ पे इक्वल टू है वहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर, जहाँ इक्वल टू नहीं है वहाँ क्या बनेगा स्मॉल ब्रैकेट। तो ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, यानी क्लोज ओपन हो जाएगा। अब दोनों में इक्वल है, यानी कि क्लोज इंटरवल, क्लोज यानी स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, क्लोज 3 4 हो जाएगा। चलो राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। उल्टा करना है हमें, -3, 0 ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल यानी ओपन में कभी भी इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3 लेस देन x लेस देन 0। अब ये देखो सेकंड में क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर यानी क्लोज इंटरवल, क्लोज में क्या होगा इक्वल टू साइन आएगा, तो 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, और x तो हमेशा आ रही होगा। ये ओपन क्लोज, ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इसमें क्या होगा इक्वल टू का साइन आएगा, तो 6 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 12। अब ये देखो ये क्लोज और ये ओपन हो गया, ये क्लोज ये ओपन यानी बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा में क्या होगा इक्वल टू आएगा, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, तो -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। दूसरा कोई काउंटर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज ये दिया है हमें क्लोज 1 ओपन 2, इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो आप, पहले तो x
उसके बाद x बिलोंग्स टू r। चलो क्लोज यानी इक्वल टू साइन आएगा, 1 लेस देन और इक्वल टू x, ओपन, ओपन में ओनली लेस देन साइन 2। दूसरा कोई लेते हैं हम लोग, चलो ओपन 4 ओपन 6 यानी x बिलोंग्स टू r तो लिखना ही है हमें। ओपन में क्या होगा, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडिंग यानी इक्वल टू साइन नहीं आएगा, ओनली लेस देन साइन आएगा। क्या लिखोगे हम, 4 लेस देन x लेस देन 6 हो जाएगा। दूसरा कोई इंटरवल लेते हैं, चलो क्लोज 7 क्लोज 9। क्लोज में क्या होगा, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडिंग, तो x बिलोंग्स टू r यानी कि इक्वल टू साइन आएगा ना, 7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9। एक और ले लेते हैं, चलो 6 10, ये ओपन ये क्लोज यानी 6 नहीं आएगा बट 10 तो आएगा, तो x बिलोंग्स टू r, 6 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 10। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोलेटेड ट्राइंगल। अब ये तो टाइप ऑफ राइट ट्राइंगल हो गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल के अंदर एक यूनिवर्सल ले लेते हैं। अब ये तो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स है, राइट ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो वी टेकिंग यू क्या लेंगे हम लोग, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स इज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द गिवन सेट। यानी पूरा एक जो सेट बनेगा यूनिवर्सल को हम लोग क्या ले लेते हैं कि पॉसिबल ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब पॉसिबल ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो भी होगा आपके पास जितने भी ट्राइंगल्स बनते हैं वो सारे ट्राइंगल इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आपको लिखना है, तो यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे आप, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द गिवन सेट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, गिवन सेट ए इक्वल टू 1 3 5 बी 2 4 6 सी 0 2 4 6 8 है। अब क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए बी एंड सी। तो हमें खाली चेक करना है कि भाई यूनिवर्सल सेट है कि नहीं गिवन सेट। तो पहले में तो हमें क्या लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 गिवन है, ये ए बी सी का यूनिवर्सल है कि नहीं वो आपको चेक करना है। तो आपको खाली इतना ही चेक करना है कि जिस सेट के अंदर ए बी सी के सारे एलिमेंट आते हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट है और बाकी का यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो पहले वाले में तो क्या नंबर दिए आपको, देखो बुक के अंदर देखो तो मालूम पड़ेगा आपको, 0 1 2 3 4 5 6 दिया है, लेकिन 8 देखो सी के अंदर 8 है और आपको जो यूनिवर्सल सेट दिया गया उसके अंदर नहीं है, तो गिवन सेट नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। तो पहला वाला तो है नहीं। चलो सेकंड वाले को चेक करते हैं, 5 तो कभी यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता, क्यों, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सेकंड वाला तो है नहीं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 10 नंबर है, 0 to 10 है। देखो ए में क्या नंबर है, 1 3 5 इसमें आ गए, 2 4 6 ये भी आ गया, 0 2 4 6 8, यानी कि ए बी और सी के सारे एलिमेंट आपको थर्ड वाले में मिलते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सारे एलिमेंट आ जाते हैं ए बी सी के, यानी कि थर्ड वाला जो है इट इज अ सबसेट ऑफ ए बी एंड सी। तो ये हो गया आपका ए बी सी का यूनिवर्सल सेट, यानी थर्ड वाला ट्रू है। फोर वाला चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट जीरो तो है नहीं क्योंकि सी के अंदर जीरो है और जो 4 नंबर है उसमें जीरो नहीं है, तो 4 वाला भी यूनिवर्सल सेट नहीं है, यानी एक ही यूनिवर्सल सेट मिला हमें, कौन सा मिला, थर्ड मिला। ठीक है, आज हमने 2 एक्सरसाइज की है, कौन कौन सी, 1.2 एंड 1.3। लेकिन स्टूडेंट पहले आप लोग है ना डेफिनेशन प्रिपेयर करना, डेफिनेशन प्रिपेयर करने के बाद ही सम स्टार्ट करना, डायरेक्ट सम स्टार्ट मत करना। ठीक है, तो पहले एक बार फॉर्मूला सब थियरी है उसको पढ़ो, वीडियो को 2-3 बार देखो बराबर, उसके बाद सम स्टार्ट करना। पहले डायरेक्ट सम स्टार्ट मत करना, पहले सारे डेफिनेशन को क्लियर करो एकदम, और जो भी डाउट है मुझे कॉल करो। ठीक है, एक काउंटर एग्जांपल हम लोग देते हैं कि सपोज a इक्वल टू 1 2 3 सेट ऑफ 4 5 6 and b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। a इक्वल टू बी है कि नहीं आपको चेक करना है, क्योंकि ये दो सेट है वो दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है वो आपको बताना है।
आपको लगता है कि सर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 दोनों इक्वल हो गए, नहीं, यहाँ पे ये एक ही एलिमेंट है 4 5, यहाँ पे सेपरेट है 4 एंड 5 सेपरेट है, यानी कि नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो गए आपके पास 1 2 3, एक ही एलिमेंट है 4 और एक हो गया 5, यानी 5 मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको 6 एलिमेंट मिलेंगे। तो 4 5 बिलोंग्स टू ए होगा, सेट ऑफ 4 5 बिलोंग्स टू ए होगा, ठीक है। बट यहाँ पे 4 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा, यानी ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, सो ए नॉट इक्वल टू बी मिलेगा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं MCQ के अंदर कि भी ए इक्वल टू 1 2 3 सेट ऑफ 4 5 एंड 6 फाइंड नंबर ऑफ ए, तो कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3, इसको एक ही एलिमेंट काउंट करना है आपको। ये दूसरा हो गया 1 2 3 4 5, हाउ मेनी एलिमेंट 5 एलिमेंट हो गए, ठीक है, ओके।